Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Paper Vault, where we are solving past paper questions for IGCSE Physics. Currently, we are solving topicals for paper 2. We've covered up till about 8 topics. And this is part 2 for the topic of turning effect of forces or moment of force. So we did like around 21 questions in part A, and now we are going to start with question number 21. Okay, so let's start. But before we start, kindly like and subscribe the channel and press the bell icon. And if you find anything helpful in this video, kindly remember me in your prayers, and if you have any query, kindly comment. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Question number 21. A uniform plank rests on the pivot at its center. Two children P and Q sit on the plank in the position shown. The mass of the child P is 25 kgs. The plank is balanced. What is the mass of the child Q? Okay, now the key word here being balance. So this system is in equilibrium. Okay, and what we know up till now is that the child P has a mass of 25 kgs. Okay, ji? And we have to find the mass of child Q. Okay, now the perpendicular distance of child P from the pivot is 1.2 meters, and the perpendicular distance of child Q from the pivot is 1.5 meters. Okay, now we know that for something to be in equilibrium, resultant force has to be 0 and resultant moment has to be 0 as well, and it has to be resultant force. So we'll have to convert this mass into weight, so that weight and force we know are used interchangeably. So the first step in order to solve this question is we have to convert the mass of this child into weight. So 25 kgs, and this is an old question, so the value of G would be 10. So this would give us, you might use 9.8 as well. A minor difference is going to be there, but it's okay. So chalo, 245 newtons is going to be the weight of child P. So we know that when something is in equilibrium, so clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. This is going to be clockwise and this is going to be anti-clockwise. So clockwise में हम लिखेंगे F1 D1 is equal to F2 D2. This being D1, this being D2, and this being F2, and this being F1. So F1 अभी हमको नहीं पता. D1 इसका 1.5 है. F2 is 245 into D2 है 1.2. So this is going to give us 294, and this is going to give us, so 294 by 1.5 is the being 196 newtons is the weight of this child. But we need to have the mass of the child Q. So we have to change this weight into mass. So 196 by 9.8 is going to give us the mass, which is going to be 20 kgs. So option A is our correct answer. ठीक हो गया जी? ये force यहाँ पे 245 न्यूटन्स की लग रही थी और यहाँ पर 196 न्यूटन की थी force, and then the mass came out to be 20 kgs. ठीक हो गया जी? So we are done with question number 21. Question number 22.
The diagram shows a trolley used to transport a load of 400 newtons. Okay, the force F vertically downwards is needed to balance the trolley as shown. The center of mass of the trolley is vertically above the pivot. Okay, what is the value of F? Okay, now this is our pivot. We need to locate the pivot first. So the perpendicular distance of this force F from the pivot is 40 centimeters. ठीक हो क्या जी? And then there is this weight of the trolley that is acting downwards as well, and the distance of this, the perpendicular distance of this force from the pivot is 15 centimeters. So this is a pretty straightforward question. ठीक है जी, ये आपको clockwise दे रहा है मोमेंट, ये आपको एंटी clockwise दे रहा है. When something is in equilibrium, तो clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. Alhamdulillah, excuse me. And clockwise moment हमारा आएगा from this force, which is actually the weight of the trolley, and इसका perpendicular distance. तो 400 into 15, ठीक है जी. And कभी कभी इसको मीटर्स में चेंज करना पड़ता है, कभी नहीं भी करते. जो चलो अभी हम इसको कर लेते हैं. और एंटी क्लॉकवाइज में फोर्स वी डोंट नो, एंड इट्स perpendicular distance from the pivot is 40 centimeters, that is 0.4 meters. ठीक है जी. तो this is going to give us 60 Newton meters. ठीक है जी, ये मोमेंट आ गया. And this is F into 0.40. The 60.40 हो जाएगा if we have to find this force F. ठीक है जी. So this is going to give us 150 newtons. ठीक है जी. तो this is the correct option. यहाँ पे ये डायग्राम इस सिस्टम में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी और सब, लेकिन it was so simple. बस हमें सिर्फ perpendicular distance of this force trace करना था from the pivot, और इस force का perpendicular distance trace करना था. तो ये question हमारा हो गया. Okay, now moving on to the next question. Question number 23. A beam is pivoted at its center of the mass. It is acted upon by two forces, 10 newtons and 5 newtons as shown. What is the resultant moment about the pivot? Okay. Now what we should now first see what we know. ठीक है जी. तो ये हमारा पिवट है, हमने इसका लोकेट कर लिया. एक फोर्स 10 न्यूटन की है, एक फोर्स 5 न्यूटन की है. और ये जो 10 न्यूटन की फोर्स है, अच्छा पहले ये देख लेते हैं, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड है. 5 न्यूटन की जो फोर्स है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट 15 सेंटीमीटर्स है. और जो 10 न्यूटन की फोर्स है उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द पिवट वो हम करेंगे 25 minus 15, which would be give us 10 सेंटीमीटर्स. ठीक हो गया जी. तो ये हमने यहाँ का डिस्टेंस निकाल लिया फ्रॉम द पिवट. अब हमको निकालने हैं मोमेंट्स. ठीक है जी. तो फर्स्ट मोमेंट जो है ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये आपको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा और ये क्लॉकवाइज देगा. ठीक है, तो हम ऐसे कर लेते हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंट पहले निकाल लेते हैं. ठीक है जी. तो वो होगा फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो फोर्स है जी 10 न्यूटन्स की और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर्स का. तो दिस इज गोइंग टू गिव अस 100 न्यूटन मीटर सेंटीमीटर्स एज द क्लॉकवाइज मोमेंट. अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकालें तो उसके लिए हमें F इंटू डी जो करना पड़ेगा, उसमें हमें फोर्स है हमारे पास 5 न्यूटन्स की और हमारा perpendicular distance of this force from the pivot is 15 centimeters. So this is going to give us 75 Newton centimeters. अब जब हमको resultant moment निकालना है तो हम क्या करेंगे? We will subtract this moment from the clockwise moment.
100 Newton centimeters minus 75 Newton centimeters, which is going to give us 25 Newton meters. और चूंकि क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है तो इसलिए 25 न्यूटन क्लॉकवाइज जो है वो हमारा आंसर होगा, विच इज गोइंग टू बी बी, क्योंकि यहां पर जो मोमेंट क्लॉकवाइज बन रहा है वो 100 है और जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो 75 है। तो चूंकि क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है इसलिए 100 में से 75 कैंसिल हो जाएंगे, 25 न्यूटन मीटर्स सेंटीमीटर्स वुड बी लेफ्ट, और चूंकि क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा था तो इसलिए इट वुड बी इन द रिजल्टेंट मोमेंट वुड बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, so let's move forward. Question 24 asks us which object is in equilibrium. Now for something to be in equilibrium, clockwise moment, anti-clockwise moment के equal होना चाहिए, upward force, downward force के equal होनी चाहिए, या फिर the force has to be opposite in direction and equal in magnitude. ठीक है, having the same लाइन. ठीक है, तो इसका तो जनाब रोटेशन हो जाएगी. ठीक है, दिस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. ये जो है वो रोटेट कर जाएगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट इन इक्विलिब्रियम. इसके ये अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल तो है बट दे आर नॉट इन द सेम लाइन. तो जब कोई भी फोर्स सेम लाइन में नहीं होते विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ रोटेशन. सो अगर आप यहाँ पर देखो सी ऑप्शन, तो दीज फोर्सेस आर equal in magnitude and opposite in direction and are also in the same line. तो C is going to be the correct option. ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि कहीं ना कहीं से रोटेशन हो जाएगी और बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी. ओके, सो ऑप्शन C is going to be our correct answer. Question number 25. Which moving body has a resultant force acting on it? A driver rising vertically through water at a constant speed. Okay. An aircraft circling an airport at a constant speed. Okay. A train going up straight incline at a constant speed. A parachuting descending vertically at terminal velocity. Okay. Now when a driver is rising vertically through water at a constant speed, तो इसका मतलब ये है कि it is moving at a constant speed, तो उस पर कोई resultant force act नहीं कर रही. Upward force, downward force सब balanced है. Train going up at a constant speed सब balance है. Constant speed का मतलब ये है कि acceleration zero है. यहाँ पे भी इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जीरो है. तो जब एक्सेलरेशन जीरो होगी तो आप ये देखो फोर्स इज इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला जब आप लगाते हो तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज गोइंग टू बी जीरो. तो देयर इजंट गोइंग टू बी एनी रिजल्टेंट फोर्स. यहाँ पे भी कांस्टेंट स्पीड है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली यही होगा. पैराशूटर्स डिसेंडिंग वर्टिकली एट टर्मिनल वेलोसिटी पे भी एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होती है. लेकिन एनीथिंग दैट इज मूविंग इन अ सर्कल and even if it is moving at a constant speed, so it will always be accelerating because of a change in velocity. ठीक है, for acceleration to be zero now, the object has to be moving in a straight line and it should not be changing directions. ठीक है, जहां किसी ऑब्जेक्ट ने डायरेक्शन चेंज किया, अगर वो फॉर एग्जाम्पल आगे पीछे भी मूव कर रहा है या ऊपर नीचे भी मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी. देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स वुड बी मोर देन जीरो. ठीक है, कोई ना कोई रिजल्टेंट फोर्स होगी. फॉर एनीथिंग दैट हैज टू हैव जीरो एक्सेलरेशन इट शुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, इवन दो स्ट्रेट लाइन में मूव ना करे लेकिन चेंज ना करे डायरेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमेशा डायरेक्शन चेंज हो रही होती है तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट का कभी भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता. सो इस पे कांस्टेंट स्पीड पे मूव करने के बावजूद देयर इज गोइंग टू बी अ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट. ठीक है, व्हिच विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, क्वेश्चन नंबर 26. A beam of weight 6 newtons is suspended from two strings P and Q. Okay, the string P is 30 centimeters from the left hand side of the beam
okay, as shown. String Q is not shown, ठीक है, and then they say that the tension in this string P is 2 newtons, ठीक है जी. What is this tension in string Q and where it is attached so that the beam is in equilibrium? Okay. So now first we will study the system and then move on. वेट ऑफ द बीम जो है वो 6 न्यूटन्स है और जब वो ना बताया गया हो तो वो सेंटर पर ही एक्ट कर रहा होता है, ठीक है. सारी मेजरमेंट्स अगर आप देखो तो यहां से ली जा रही हैं, इसका मतलब है कि ये हमारा पिवट है, ठीक हो क्या जी. इस फोर्स का ये जो 6 न्यूटन वेट एक्ट कर रहा है बीम का, उसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द पिवट जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है. जो स्ट्रिंग पी है, जो 2 न्यूटन्स की जिसमें टेंशन है, उसका पिवट से डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, ठीक है. हमको दो बातें बतानी है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग क्यू क्या होगी, ठीक है, और वो कहाँ पे अटैच्ड होगा सो दैट द बीम इज इन इक्विलिब्रियम. सो इन दिस क्वेश्चन द बीम हैज टू बी केप्ट इन इक्विलिब्रियम, ठीक हो क्या जी. सो देयर आर 2 कंडीशंस दैट हैव टू बी मेट फॉर इट, ठीक है. वो क्या होगी कि अपवर्ड फोर्स is equal to downward force होगी, so that there is no resultant force, ठीक है. and clockwise moment जो होगा वो anti clockwise moment के equal होना चाहिए, ठीक है. so we see that the weight of the beam which is 6 newtons is acting in the downward direction, ठीक है, and there is only one upward force of 2 newtons, ठीक है जी. तो इसका मतलब है कि जो Q होगा that has to be इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि अगर वो कहीं डाउनवर्ड होगा तो फिर अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स से बैलेंस नहीं हो सकेगी, ठीक है. ओके, और हमको ये बात वैसे भी पता है कि जो टेंशन होती है किसी भी चीज में वो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होती है. टेंशन की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होती है. तो जो अगर हमें टेंशन फाइंड करनी है इन द स्ट्रिंग क्यू तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, वो क्यू जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो सकता, ठीक है. अब वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पर है, कहाँ है, दैट वी हैव स्टिल हैव टू फाइंड आउट, ठीक है. अच्छा, अब अगर हमें सबसे पहले जो हम काम कर लेते हैं जिसका हमें पक्का यकीन है वो ये है कि 6 न्यूटन जो वेट ऑफ द बीम है वो पिवट से 20 सेंटीमीटर दूर है और डाउनवर्ड फोर्स है और क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है, तो हम इसका मोमेंट निकाल लेते हैं. मोमेंट हमें पता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है जी, ऑफ द फोर्स. तो फोर्स यहाँ 6 न्यूटन्स की है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट जो है वो 20 सेंटीमीटर का है, तो दिस इज गोइंग टू गिव अस 120 centimeters, ठीक हो क्या जी. Now we calculate the moment due to the tension in the string P. वो क्या है जी, ये मोमेंट जो है वो उसको W कर देते हैं कि वेट ऑफ द बीम की वजह से, ये मोमेंट जो है वो P की वजह से है. तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 2 न्यूटन्स और इस फोर्स की वजह से जो इस फोर्स के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द पिवट वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है. तो दिस इज गोइंग टू गिव अस अ मोमेंट ऑफ 30 न्यूटन्स सेंटीमीटर, ठीक है जी. अब हमें पता है कि ये 120 न्यूटन्स का मोमेंट है जो कि क्लॉकवाइज है, ठीक है, और ये जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होने हैं उसमें एक मोमेंट 60 न्यूटन्स का है और एक मोमेंट जो है वो इस तरह से होगा कि वो भी 60 न्यूटन्स ही आ जाए और क्लॉकवाइज मोमेंट बैलेंस हो जाए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. क्लॉकवाइज मोमेंट 120 है, ये हमें नहीं पता, ठीक है. तो अब हम अपने ऑप्शंस की तरफ आते हैं. We almost need a moment of 60 newtons to be created by Q, ठीक है. तो हम ये मोमेंट्स जो उन्होंने वैल्यूज दी हुई हैं उससे निकालते हैं. अच्छा, पहला वो कहता है कि जी जो Q है वो 4 न्यूटन्स है और 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड पर है जी. अच्छा जी, 10 सेंटीमीटर वो समवेयर भी है, तो जी यहाँ पे Q है और वो 4 न्यूटन्स है और 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिवट है. दिस इज गोइंग टू गिव अस मोमेंट ऑफ 40 न्यूटन्स, ठीक है जी.
अगर वो 4 न्यूटन है और 15 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड है तो इट वुड बी समवेयर अराउंड हियर, ठीक है। और यहां से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर है। अगर हम इसका मोमेंट निकालें 4 इंटू 15 करें तो दिस इज गोइंग टू गिव अस 60 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, अगर हम ऑप्शन सी पे जाएं, 6 न्यूटन्स एट 10 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये, ठीक है, तो ये भी हमें मोमेंट 60 न्यूटन्स का ही देगा। लेकिन क्या होगा कि 6 न्यूटन और 2 न्यूटन मिलकर जो अपवर्ड फोर्स है उसको बहुत ज्यादा कर देंगे, 8 न्यूटन की अपवर्ड फोर्स हो जाएगी, विच इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द फोर्स डाउनवर्ड फोर्स जो कि 6 न्यूटन है। और हमें ये पता है कि हमें यहाँ पे 6 न्यूटन की फोर्स ही चाहिए ताकि वो बैलेंस कर सके। ये अगर 2 न्यूटन है तो हमारे पास जो ज्यादा बेहतर ऑप्शन आएगी वो हमारे पास ऑप्शन बी होगी, जो कि 4 न्यूटन की फोर्स है और 60 न्यूटन सेंटीमीटर का वो हमें मोमेंट दे रहा है। तो ये हमारे सारे कंडीशंस को फुलफिल कर देता है। अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल हो गई, 6 न्यूटन था तो 4 + 2 6 न्यूटन हो गया, और क्लॉकवाइज मोमेंट जो था वो 120 न्यूटन था, तो 60 + 60 इज इक्वल टू 120 न्यूटन सेंटीमीटर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन सी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन सी में जो फोर्स है वो अपवर्ड फोर्स को बहुत ज्यादा एक्सीड कर देगी और फिर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27. The diagram shows a uniform bar of length 120 centimeter and a weight of W. The bar is pivoted at a point 40 centimeters from the left end of the bar. Okay, the load of W/2 is suspended from the right hand of the bar. A downward force F is applied to the left hand of the bar to keep it in equilibrium. What is the magnitude of force F? Okay. सबसे पहले जी हम अपना पिवट लोकेट कर लेते हैं। That is 40 centimeters from the left side of the bar. हमको ये पता है कि जो पूरी बार है इसकी लेंथ 120 सेंटीमीटर, ठीक है जी। हमको ये पता है कि जो बार का सेंट्रल पॉइंट है वो 60 सेंटीमीटर है, जहां पे सारा बार का वेट एक्यूमुलेट कर रहा है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि इस तरफ 60 होगा और इस तरफ 60 होगा, क्योंकि 60 + 60 इज 120। ये आपका जी 20 होगा, बिकॉज यहां से यहां तक 40 है तो 60 में से 40 रह गया तो जी 20 रह गया, ठीक हो गया जी। तो अब हमको ये मालूम है कि ये दोनों जो हैं हमें ये क्लॉकवाइज मोमेंट्स दे रही है और ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है। और हमको पता है कि किसी चीज को इक्विलिब्रियम में करने के लिए क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है जी। तो हमारे क्लॉकवाइज मोमेंट्स जो हैं वो हैं W इंटू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा हमारा है W/2 फोर्स और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट इज 60 + 20 80, ठीक है जी। दिस इज गोइंग टू बी 80। एंटी क्लॉकवाइज में हमारा फोर्स F है और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट 40 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। तो जब हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 20 W + 80 W/2, तो इसको कर देते हैं 240, 60 W is going to be the clockwise moment and this is going to be F into 40. So 60 over 40 W is going to give us our force F. That is going to be 3/2 W. ठीक है जी। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इसका मतलब है, ठीक है जी।
Okay ji, moving on to question number 28. A spacecraft is traveling in space with no resultant force and no resultant moment acting on it. Which statement about the spacecraft is correct? Its direction is changing, it is in equilibrium, its speed is decreasing, its speed is increasing. अगर direction change हो रही होगी तो there is going to be an acceleration. And acceleration greater than 0 means that a resultant force has to be acting on it. Speed decrease हो रही होगी तो there is going to be a deceleration. And deceleration का मतलब है कि resultant force would be greater than 0. Speed increase हो रही होगी, acceleration हो रही होगी, and resultant force is greater than 0. So only when the body is in equilibrium, the resultant force and resultant moments are 0. So B is the correct answer. Okay. Now, sorry, excuse me. A balloon and a mass are attached to a rod that is pivoted at P. Okay. The balloon is filled with helium, a gas less dense than air, so that it applies an upward force on the rod. The rod is horizontal and stationary. Okay. Which action causes the rod to rotate clockwise? अच्छा जी, अभी ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, अभी हमें इसको रोटेट करवाना है क्लॉकवाइज. ठीक है जी. पिवट हम लोकेट कर लेते हैं जी, ये है हमारा. मास उससे 20 सेंटीमीटर्स के फासले पर है और दिस बलून इज एट 30 सेंटीमीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम इट. ओके. अच्छा, अब what we don't know is, this was something we knew. What we don't know is that we don't know that what forces are being applied. ठीक है, इसका मास का कोई हमें नहीं पता, इस बलून का कुछ हमें नहीं पता. तो we can, अच्छा ये क्वेश्चन 2-3 तरीकों से सॉल्व हो सकता है, बट चलो एक मुझे जो तरीका सबसे अच्छा लगता है ना assumptions करने का, वो तरीके पर चलते हैं. हम assume कर लेते हैं कि जो मास है ना वो 6 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड एक्सर्ट कर रहा है. ठीक है, और हमको इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो पता ही है. ठीक है, और हमको पता होता है कि अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल है. हम इसको कह देते हैं कि ये जो 6 न्यूटन वाला है ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है और ये जो बलून है ना वो क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, क्योंकि हमें फाइंड भी तो क्लॉकवाइज इसको रोटेट करवाना है ना. तो इसके लिए जो फोर्स है हमको नहीं पता, तो हम इसको फोर्स ले लेते हैं. ठीक है, डिस्टेंस हमें पता है, तो फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट इज 30. जो एंटी क्लॉकवाइज है उसमें हमने एज्यूम कर लिया है कि जी ये जो फोर्स डाउनवर्ड है ना वो 6 न्यूटन की है और 20 सेंटीमीटर्स है जी फ्रॉम द पिवट. ठीक है, तो ये हमारा आराम से निकल आएगा 6 × 20/30. तो हमें बलून का एज्यूम्ड फोर्स पता चल जाएगा. ठीक है, दिस इज गोइंग टू गिव अस 4 न्यूटन्स. तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो मास है जो कि 6 न्यूटन्स का है और ये जो बलून है इसका फोर्स जो है 4 न्यूटन्स है. ठीक है, हमने फाइंड कर लिया. नाउ once we have assumed values ki we can work out the answer. देखो, sometimes we have to be creative in finding answers. There isn't much available, so something we had to go on na, so we created our own scenario. ठीक हो गया. तो अब अगर हम ये आंसर्स को देखें तो वो कहते हैं सिनेरियो जो फर्स्ट है कि मूव बोथ द बलून एंड द मास 10 सेंटीमीटर्स टू द लेफ्ट. तो अगर हम बलून को 10 सेंटीमीटर्स टू द लेफ्ट मूव करेंगे तो बलून आ जाएगा 20 सेंटीमीटर्स पे, और अगर हम मास को यहाँ मूव करेंगे तो मास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द पिवट पर. ठीक है, तो अब अगर हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को करें तो 4 × 40 हो गया. ओ सॉरी, हम लेफ्ट पे मूव कर रहे थे, मैंने राइट पे मूव कर दिया. सॉरी. अगर हम लेफ्ट पे मूव करेंगे तो बलून 40 पर आ जाएगा, और अगर हम मास को 10 मूव करें यहाँ पे लेफ्ट पे मूव करेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा जहां बलून था. सॉरी फॉर द मिक्सअप. सो ये जो क्लॉकवाइज है वो 4 × 40 हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज 6 × 30 हो जाएगा. ठीक है, तो ये 180 आता है जी और ये 160 आता है. तो अगर हम यहाँ देखें तो क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है वो तो छोटा है फ्रॉम द
एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये जो ऑप्शन है आपका, ये आपको इस सारे सिस्टम को क्लॉकवाइज रोटेट नहीं करवाएगा। ठीक है, तो ए हमारा जो ऑप्शन है वो इज इनकरेक्ट। तो अब हम ऑप्शन 2 पे जाएं कि अगर हम बलून और मास को 10 सेंटीमीटर टू द राइट मूव करें, जो हमने पहले कर दिया था, तो बलून आ जाएगा जी 20 सेंटीमीटर्स पर और मास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर्स पे। अब अगर हम इस सिनेरियो में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकालें, तो क्लॉकवाइज मोमेंट हमारा जी बनेगा 4 इंटू 20 और 6 इंटू 10 बन जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट है वो है जी हमारा 80। ठीक है जी, और जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो 60। अब इस सिनेरियो में जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वो बड़ा है फ्रॉम द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। हम बाकी के भी देख लेते हैं और फिर अपना करेक्ट ऑप्शन डिसाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ सी ऑप्शन में हमने बलून और मास को दोनों को 25 सेंटीमीटर मार्क पे मूव कर दिया, यहाँ पे दोनों ही यहाँ पर आ गए। ठीक है जी, तो पिवट से दोनों का डिस्टेंस 25 हो गया। तो 4 इंटू 25 हो जाएगा क्लॉकवाइज और 6 इंटू 25 हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस इज गोइंग टू बी 100 एंड दिस इज गोइंग टू बी 150। अगेन जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो इज लेसर देन द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है जी, सो अगला जो है कि बलून को 20 सेंटीमीटर मार्क पे रख दें यहाँ, और मास को 30 सेंटीमीटर मार्क पर रख दें यहाँ, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या प्रोड्यूस होंगे? 4 इंटू 20 हो जाएगा जी हमारा, और 6 इंटू 30 हो जाएगा। तो ये इज गोइंग टू गिव अस 80 एंड दिस इज गोइंग टू गिव अस 180। तो फिर एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब है वी आर श्योर कि हमारा सी, सॉरी नॉट सी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बी में this anti-clockwise movement was more than anti-clockwise movement। बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। हम किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते थे, पर आई थॉट दिस इज गोइंग टू बी अ फन वे ऑफ सॉल्विंग इट। मैंने ऐसे सॉल्व करवा दिया। बहरहाल यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट विद इट। ठीक है जी, ओके, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 30। The diagram shows a uniform meter rod pivoted at the 20 centimeter mark. ठीक है जी, the rule balances when the weight of 6 Newton is hanging from the 0 mark and a weight of 2 Newtons is hanging from a 70 centimeters mark. What is the weight of the rule? Okay, अभी ये सिस्टम जी हमारा इक्विलिब्रियम में है। उन्होंने हमें weight of the rule फाइंड करने को कहा है। ये हमारा पिवट है। जब weight of the rule कहीं मेंशन नहीं किया होता तो इट्स यूजुअली इन द सेंटर। ठीक है, क्योंकि ये पूरी 100 सेंटीमीटर की है, तो वेट जो है वो 50 सेंटीमीटर पर एक्ट कर रहा होगा ऑफ द रॉड, एंड वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करता है। ठीक है जी, अब हमको ये वाली बात भी पता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा होगा और वेट और ये जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हमें वेट ऑफ द मीटर रूल फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज मोमेंट को एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वलेट कर देंगे। ठीक है जी, तो वेट हमने W ले लिया और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट क्या है जी? ये अगर 50 मार्क है और ये 30 पर है, तो ये पिवट से इसका डिस्टेंस 20 पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा और हमको ये भी करना है। तो ये अगर वैसे 70 पर है तो पिवट से उसका डिस्टेंस 50, 60, 70, ये 20 इधर हो जाएगा, तो 20 प्लस 20 40। ठीक है, तो ये जो 2 न्यूटन्स का वेट हैंग किया हुआ है ये पिवट से 40 सेंटीमीटर्स के दूरी पर है। ठीक है जी, तो 2 इंटू 40 हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास हमें फोर्स पता है और हमें डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट भी पता है इस फोर्स का, विच इज 30। तो W इंटू 20 प्लस 40 80 हो जाएगा। ठीक है जी, और ये हो जाएगा 30 इंटू 6 180 होता है। तो W इंटू 20 180 माइनस 80, दिस इज गोइंग टू गिव अस 100 and W is going to be 100 over 20. So weight of this bar is going to be 5 newtons.
ठीक है जी. So B is the correct option. Hope you understood what we did. Okay. Question number 31. A uniform rod XY of weight 2 newtons has a length of 80 centimeters. Okay. The rod is suspended by a thread of 20 centimeters from the end X. A weight of 5 newtons is suspended from the end X as well. A student hangs 6 Newton weight on the rod so that it is in equilibrium. What is the distance of the 6 Newtons weight from the end X? Okay. So weight of 2 Newtons. 2 Newtons का जो weight है जी वो है और उन्होंने weight बताया हुआ है और हमें सिर्फ उसको position देनी है. ठीक है. तो हमको पता है कि जब हमें position ना दी गई हो तो हम एज्यूम करते हैं कि वो सेंटर पे होगा. ठीक है. लेकिन अब हमें सारा कुछ देखना है तो हम फाइंड कर लेते हैं. अच्छा जी. ओके. F2 इंटू D2 होगा प्लस F3 इंटू D3 होगा. तो F2 हमारा जो है वो है 2 न्यूटन्स और उसका डिस्टेंस फ्रॉम, यहाँ से सारी मेजरमेंट्स यहाँ से ले रहे हैं ना तो ये हमारा पिवट होगा. ठीक है. तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट जो है वो 20 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये आपका थ्रेड है ना. ठीक है. तो 2 इंटू 20 हो जाएगा. ठीक है. और हमें ये 6 न्यूटन्स का पता है कि वेट है. ठीक है. पर हमें उसका डिस्टेंस नहीं पता. ठीक है. और हमको ये पता है कि ये सब कुछ इक्वल टू 100 है. ठीक हो गया. तो ये आपको मोमेंट देगा 40 का. 6 इंटू D3 होगा और ये 100 के इक्वल है हमारा. तो 6 इंटू D3 यही रह जाएगा और 100 में से हम 40 को माइनस कर देंगे तो 60 रह जाएगा और D3 जो है वो हमारा 60/6 हो जाएगा. तो D3 जो है हमारा डिस्टेंस वो है 10 पर. ठीक है जी. तो डिस्टेंस फ्रॉम X कितना है? अगर वो 10 पर है, ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द X वुड बी D3 प्लस 20 ना, है ना. तो D3 10 है प्लस 20 तो ये हमारा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर. तो D हो गया जी हमारा यहां पर. ठीक हो गया जी. ओके. अच्छा मैंने एक चीज मिस कर दी. F1 इंटू D1 भी मुझे यहाँ लिख देना चाहिए था. 5 असल में इतने क्वेश्चंस कर लिया है ना अभी कि वो मुझे लगता है कि हम वी कैन बाईपास दीज थिंग्स, पर नहीं, बाईपास नहीं करना चाहिए. क्योंकि अगर कोई बच्चा यही क्वेश्चन समझने बैठा है, उसने पीछे से नहीं देखा तो फिर क्या होगा. तो ये F1 जो है वो 5 इंटू 20 की वजह से 100 है. ठीक है जी. तो ये क्योंकि एक मोमेंट था और ये दोनों जो थे वो क्लॉकवाइज दे रहे थे तो इस वजह से हम लोगों ने उसको यहाँ लिख दिया क्लॉकवाइज में और यहाँ लिख दिया एंटी क्लॉकवाइज में. ठीक है जी. तो इस तरह से D3 हमारा 30 सेंटीमीटर्स आ गया. डिस्टेंस फ्रॉम द X हमको फाइंड करना था तो ये 10 पर था वेट हमारा एक्ट कर रहा जो W दैट वाज 2 न्यूटन्स. ठीक है. तो ये 10 पर एक्ट कर रहा था तो डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट या डिस्टेंस फ्रॉम द X हमारा 20 प्लस ये 10 करके 30 आएगा. ठीक है. ओके. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32. A wooden plank rests in equilibrium on two rocks on opposite sides of a narrow stream. 3 forces PQR act on the plank. How are the sizes of the force related? Okay. Now we know that upward force is equal to downward force for something to be in equilibrium. ठीक है. तो downward force is going to be Q. ठीक है. And it is going to be P plus R. ठीक है. So option B is
द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, P प्लस R इज इक्वल टू Q। तो इस वजह से दोनों अपवर्ड फोर्सेस आर गोइंग टू बी इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है और इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। ठीक हो गया जी? ओके जी, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33। Each diagram shows a metal plate with 4 parallel forces acting on it. These are the only forces acting on the plate. In which diagram is the plate in equilibrium? Okay. For the plate to be in equilibrium, दो बातें. Resultant force 0, resultant moment भी 0. So यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑप्शन A में तो यहाँ 1 न्यूटन है और यहाँ 2 न्यूटन है, यहाँ 2 न्यूटन है, यहाँ 1 न्यूटन है। तो द फोर्सेस हैव टू बी बैलेंस्ड, ठीक है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ये नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर 2 न्यूटन की फोर्स इज बीइंग फेस्ड बाय 1 न्यूटन का फोर्स और यहाँ 1 न्यूटन का फोर्स इज बीइंग फेस्ड बाय 2 न्यूटन का फोर्स। तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, दिस इज गोइंग टू मूव। तो ये भी हमारा सी ऑप्शन नहीं है। अगर आप ऑप्शन सी को कंसिडर करें तो 1 न्यूटन का फोर्स को 1 न्यूटन का फोर्स ही ऑपोजिट और इक्वल मैग्नीट्यूड है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, लाइन भी सेम है, लाइन ऑफ एक्शन। यहाँ पे 2 न्यूटन है, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन से 2 न्यूटन आ रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। सो दिस कैन बी इन इक्विलिब्रियम। डी को भी देख लेते हैं। डी में फिर वही है कि ऑपोजिट और इक्वल नहीं है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, बाकी सारे इक्विलिब्रियम में नहीं है। Okay, question number 34. The beam, uniform beam of XY is 100 centimeters long and weighs 4 Newton and weighs 4 Newton. The beam rests on the pivot 60 centimeter from the end X and the load 8 Newtons hangs from the beam 10 centimeters from the end X. Okay. The beam is kept balanced, so this is in equilibrium by a force F acting on the beam 80 centimeters from the end X. What is the magnitude of the force? Okay, this is an easy question. हम सबसे पहले जी पिवट लोकेट कर लेते हैं और सिस्टम को समझ लेते हैं। ये जी हमारा पिवट है, जो ये रॉड है वो 100 सेंटीमीटर्स की है, ठीक है जी। अगर ये डिस्टेंस 60 है और ये डिस्टेंस 80 है तो पिवट जो है वो 60 सेंटीमीटर्स पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। पिवट जो है वो 60 सेंटीमीटर्स पे प्लेस्ड है, तो पिवट से ये डिस्टेंस 20 होगा, ठीक है। इस फोर्स का डिस्टेंस 20 होगा क्योंकि 80 इज दिस होल साइड और यहाँ पर जो बाकी है वो 20 रह गया। तो 80 में से अगर हम 60 माइनस कर देंगे तो 20 होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम द पिवट। ओके, नाउ हमें देखना है कि ये जो 8 न्यूटन की फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करी वो पिवट से कितनी दूर है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है और ये पूरा 60 सेंटीमीटर्स है तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट वुड बी 60 माइनस 10, 50 सेंटीमीटर। ये जो है जी ये 50 सेंटीमीटर्स पे एक्ट कर रहा है। तो वेट ऑफ द जो बीम है वो सेंटर पर ही एक्ट कर रहा होगा जब उन्होंने आपको नहीं बताया कि वो कहाँ एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ एक्ट कर रहा होगा और ये डिस्टेंस पिवट से कितने सेंटीमीटर्स के फासले पर है। ये अगर 60 है, ये अगर 10 है और ये सेंटर ऑफ द बीम है तो ये 50 है, तो दिस इज गोइंग टू बी 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। हमारे पास हमारा सारा आ गया है डेटा। तो अब हमें क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज करना है, ठीक है। अगर अब हम इसको ये देखें तो ये आई थिंक कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और ये जो दोनों चीजें हैं ना ये एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रही हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज जो है वो F है फोर्स और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट 20 है, ठीक है जी। या आपने अगर चेंज करना है तो 0.20 करना है। एंटी क्लॉकवाइज में एक तो जी फोर्स 8 न्यूटन्स की है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट 0.50 है और दूसरा जो है वो वेट ऑफ द रॉड है जो कि 4 न्यूटन्स है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट जो है वो 0.10 है।
तो ये F इंटू आई थिंक इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको इसी तरह से करते हैं 28 इंटू 50 जो है वो मीटर्स जो है सेंटीमीटर्स जो है वो 400 देगा मोमेंट, और 4 इंटू 10 जो है सेंटीमीटर्स वो मोमेंट देगा 40 की, ठीक है। तो 400 प्लस 40 जो है वो 440 हो जाएगा। फोर्स यहीं रह जाएगा, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यहाँ आ जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू गिव अस 22 न्यूटन्स। तो जनाब द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज 22 न्यूटन्स, ठीक है। So this is the end of question number 34. Let's do question number 35. Question number 35. A pair of cutters is used to cut a rope. Where should the rope be positioned, and at which labeled points should the hands be positioned to produce the greatest cutting force? Now they are asking us that where should the hands be placed, should the rope be placed, so that this machine or this cutter cuts with the greatest efficiency. Okay, now we know that when you use a scissors or something like this, ये hedge cutter में भी होगा hedges cut करने के लिए, तो हम यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिस चीज को काटना होता है। यहाँ पे कटिंग एबिलिटी सिजर्स की या कटर्स की सबसे ज्यादा होती है, समवेयर वेरी क्लोज टू द पिवट। और हमें ये पता है कि सिजर्स में यहाँ पर पकड़ने के लिए 2 होल्स होते हैं, करीब नहीं होते फ्रॉम द पिवट। जितना दूर जा सकते हैं पिवट से उतना ही बेहतर होता है। बिल्कुल एंड पर ये होल्स होते हैं टू hold the scissors and to put the pressure, क्योंकि we know that कि जितना भी pivot से distance ज्यादा होगा उतनी ही आसानी से हमारा काम हो सकता है, कम से कम फोर्स लगेगी और बेहतरीन काम हो जाएगा। तो जब हम ये 2 चीजें अपनी एक्सप्रेस कर लेते हैं कि S बेहतरीन पोजीशन है, the furthest you can go from the pivot where a force can be applied to use this machine, तो वो S है। और आपको मालूम है कि जितना पिवट से करीब होगा उतना ही कटिंग सबसे बेहतरीन होगी। तो उसके लिए अगर हम देखें तो D is our correct answer. Rope should be positioned at Q and hands should be positioned at S for the best possible cutting that can happen. Okay, question number 36. The diagram shows a uniform bridge 4 meters long and weighs 10,000 newtons. The bridge is pivoted at one end. The force at the other end gradually increases until the bridge begins to lift. Okay. What is the lifting force as the bridge starts to move upwards? Acha ji, first of all, in order to understand this system and figure, we need to locate the pivot. Here is the pivot. The rod is 4 meters long. The weight of the rod is 1000 newtons. When not specified, तो वो सेंटर में usually act कर रहा होता है, और weight of anything acts in the downward direction. ठीक है जी, this is the lifting force that we have to find. ठीक है जी। और उसका distance from the pivot अगर हम देखेंगे तो 4 मीटर्स ही होगा, यहां से यहां तक 4 मीटर्स है। जो हमारा वेट जहां एक्ट कर रहा है ऑफ द रॉड वो सेंटर पर ही होगा, दैट वुड बी 2 मीटर्स। ठीक है, तो अगर हम अपना लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम इस्तेमाल करें तो हमें पता है कि क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल होता है। दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस an anti-clockwise moment and this is going to produce a clockwise moment. तो हम क्या करेंगे कि 10,000 is the force F1 with the perpendicular distance of 2 meters
And whereas the anti-clockwise is concerned, the force we have to find and the perpendicular distance of this force from the pivot is 4 meters. तो ये हमारा हो जाएगा 20,000 by 4 is equal to F2, and that is going to give us 5,000 newtons. So this force is 5,000 newtons. ठीक है जी, option B is the correct answer. Okay जी, moving forward. The diagram shows a wooden beam of 20 newtons. ठीक है जी. The center of the mass of the beam is labeled M. There is a pivot at one end of the beam. The beam is kept horizontal by an upward force F. What is the magnitude of this force F? Okay ji. First of all, locate the pivot. Here it is. This is the center of mass of the beam. This is 1.2 meters away from the pivot. The force that we have to find is 2 meters from the pivot. तो हम अपना law of equilibrium इस्तेमाल करते हैं. Clockwise movement is equal to anti-clockwise movement. This force is going to give us anti-clockwise movement. This is going to give us clockwise movement. So F1 D1 is equal to F2 D2. This being F2, this being F1, this being D1, this being D2. The force is 20 newtons and the distance from the pivot is 1.2 meters. F2 we don't know about and its distance from the pivot is 2 meters. ठीक है जी, तो ये आपका हो जाएगा 20 into 1.2 is going to give you 24 Newton meters, and F2 24 by 2 is going to give us the force F2, which is going to be 12 newtons, of course. So A is going to be the correct answer. This force is 12 newtons. ठीक है जी? Moving on. The diagram shows a non-uniform beam of weight 120 newtons. Pivoted at one end. The beam is kept in equilibrium by the force F, this force. What is the value of the force F? Okay, we have to find the value of this force. This is our pivot. The weight is concentrated over here and is 20 centimeters from the pivot. This force F that we have to find is like 80 centimeters from the pivot. So now we have everything that we need. So clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. This is going to give us an anti-clockwise moment. This is going to give us a clockwise moment. So F1 D1 is equal to F2 D2. This being F1, this being D1, this being F2, this plus this being D2. ठीक है जी? So F1 is 120. D1, the perpendicular distance from the pivot for this force is 20 centimeters. F2 we have to find, and D2 is 60 plus 20, 80. So 120 into 20 is going to give us 2400 is equal to F2 into 80. So 2400 by 80 is going to give us F2, which is going to be 30 newtons. So option A is the correct answer. This force is equal to 30 newtons. ठीक है जी? Okay जी, moving forward. The diagram shows, excuse me. Sorry, question number 39. The diagram shows three uniform beams P, Q, and R, each pivoted at their center. The two forces acting on each beam are also shown. Okay, which beam will rotate clockwise? Okay. Now, if we see that in this system P, this is going to give us clockwise rotation, and this
is going to give us an anti-clockwise rotation. Now we need to see that is the clockwise moment greater than the anti-clockwise moment or what? So clockwise हमारा ये है force 4 Newton का और इसका perpendicular distance from the pivot is 1 meters. Anti-clockwise के लिए ये हमारा force है और इसका perpendicular distance from the pivot is 2 meters. So this gives us 4 and 8. So here the anti-clockwise moment is greater than the clockwise moment. So P में clockwise moment नहीं होगा, anti-clockwise moment होगा. If we study the system Q, तो हमें पता है कि ये वाली फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगी, ये वाली एंटी क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए 5 इज द फोर्स एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट इज 2. एंटी क्लॉकवाइज फोर्स के लिए 2 इज द फोर्स, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए 2 इज द फोर्स एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट इज 4. तो 10 क्लॉकवाइज मोमेंट है और 8 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है. तो इधर clockwise moment is greater than the anti-clockwise moment. ठीक है जी. R को भी करके देख लेते हैं. इसका जो clockwise moment है वो 4 है. Anti-clockwise moment जो है वो 2 into 1.5 is going to be 3. तो clockwise moment ज्यादा है than the clockwise moment. तो R और Q का clockwise moment ज़्यादा होगा. So C is going to be the correct option. ठीक है जी. Moving forward quickly now. A heavy beam rests on 2 supports. The diagram shows only 3 forces F1, F2, F3 acting on the beam. The beam is in equilibrium. Which statement is correct? All the forces are equal in size? No, all the forces can't be equal in size because there are 2 upward forces and 1 downward forces. The upward forces would be equal to the downward forces. ठीक है, तो नहीं, ये ऑप्शन ठीक नहीं है. Resultant force on the beam is in opposite direction to the resulting turning force. नहीं जी, ये भी ठीक नहीं है क्योंकि दोनों जीरो ही होंगे. The resultant force on the beam is 0 and the resultant turning force effect on the beam is 0. Yes, that is correct because for something to be equilibrium, एक condition ये है, upward force is equal to downward force, दूसरी है clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. तो ये जब होगा तो moment भी 0 हो जाएगा resultant और resultant force भी 0 हो जाएगा. तो C is the correct option. Okay, moving on. Question number 41. A wooden bar is pivoted at its center so that it can rotate freely. 2 equal forces F are applied to the bar. In which diagram is the turning force greatest? Now they are asking about this being greatest. ठीक है? So कौन सा चीज होगा जो जिसमें greatest rotation हो रही होगी? अच्छा जी, तो इसमें तो बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका कि जो A है इसमें अगर आप देखो तो एक क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो यही सबसे ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. यहाँ पे जो दोनों फोर्सेस है वो पिवट के बहुत करीब हैं तो ऑब्वियसली टर्निंग इफेक्ट कम होगा. यहाँ पे दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा. यहाँ पे एक तरफ फोर्स है वो दोनों एक ही जगह पे एक्ट करेंगी, उसका काउंटर फोर्स ही मौजूद नहीं है तो ग्रेटेस्ट टर्निंग इफेक्ट नहीं हो सकता. ये एक दूसरे की डायरेक्शन में ही एक्ट कर लेंगी तो फिर टर्निंग इफेक्ट नहीं हो सकता. तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर है. अच्छा जी. A uniform rod rests on a pivot at its center. The rod is not attached to the pivot. The forces are then applied to the rod in 4 different ways shown. The weight of the rod can be ignored. Which diagram shows the rod to be in equilibrium? Now for anything to be in equilibrium, resultant force should be 0 and resultant moment should be 0 as well. So ये जो है ना सिर्फ एक ही rod satisfy कर रही है, वो ये है जिसमें forces equal हैं और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी इक्वल है. इस केस में रॉड इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, रॉड ऊपर की तरफ रेज हो जाएगी. इस केस में
क्लॉकवाइज मोमेंट भी होगा और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी होगा, ये रोटेशन होगी, इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। इस केस में डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स बैलेंस नहीं है, इसलिए डी इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। आई थिंक वी डन दिस क्वेश्चन बिफोर एज वेल, इसलिए मैंने इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी। यहाँ पे डायग्राम शोज क्वेश्चन नंबर 43, द डायग्राम शोज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ईच बीइंग एक्टेड अपॉन only by two forces shown. Which object is in equilibrium? Okay. For an object to be in equilibrium, the force should be equal in magnitude and opposite in direction. So C ही एक ऐसा force है। ये क्वेश्चन हमने बहुत ज्यादा किया, इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। Question 44, the diagram shows a force being applied to a lever to lift a heavy weight. Which change would enable the heavy weight to be lifted with a smaller force? Okay. हम अपनी options देखते हैं। Move the force to the right. If we move the force to the right, तो उसका distance जो है pivot से बहुत ज्यादा करीब हो जाएगा, ठीक है। और जब force pivot के करीब apply की जाती है तो फोर्स ज्यादा लगती है, ठीक है। ये बात हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं पहले भी, तो ए कांट बी द करेक्ट ऑप्शन। मूव द हैवी वेट टू द राइट। अगर आप हैवी वेट को टू द राइट मूव कर देंगे तो भी फोर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्मॉल फोर्स नहीं होगी। अगर आप मूव करते हैं फोर्स को टू द लेफ्ट, तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम द पिवट वुड इंक्रीज। तो जिस तरह डिस्टेंस पिवट से इंक्रीज होता जाएगा, फोर्स हमें काम करने के लिए कम से कम लगानी पड़ेगी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सारे कॉन्सेप्ट्स वी डन सो मेनी टाइम्स इन द प्रीवियस क्वेश्चंस के अब इनको इतना ज्यादा करने की हमें डिटेल में जरूरत नहीं है। आप लोगों को माशाल्लाह से पता है कि क्या करना है। Okay, just two questions left. Question number 45. A seesaw is made by resting a long plank of wood with its center of mass on the barrel. A boy sits on one side of the barrel and a girl sits on the other side so that the seesaw is balanced. Which statement must be true? Boy's weight is equal to the girl's weight. Okay. डिस्टेंस x इज इक्वल टू डिस्टेंस y, ये तो हमको पता ही चल रहा है कि करेक्ट नहीं है। टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल मोमेंट अबाउट द बैरल। नो, टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स, ठीक है। तब कहीं जाके कोई बात होती है, इस तरह से नहीं हो सकती। रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट मोमेंट बोथ आर जीरो। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा और रिजल्टेंट मोमेंट जीरो होगा तो ये जो है ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है जी। The diagram shows a handle with three forces, each 100 Newton applied to it. The handle is free to move. What is the effect of forces on the handle? Okay, ये जी एक फोर्स है, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है और पिवट ये है। तो द हैंडल विल मूव डाउनवर्ड्स है एक ऑप्शन, द हैंडल विल नॉट मूव, द हैंडल विल टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू द लेफ्ट, या फिर द हैंडल विल टर्न क्लॉकवाइज टू द राइट। ओके, द हैंडल विल टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू द लेफ्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि दिस इज द largest distance from the pivot, ठीक है। इसका तो कोई perpendicular distance ही नहीं है from the pivot, तो इस वजह से ये फोर्स जिस तरह अप्लाई हो रही है तो इसका कोई perpendicular distance from the pivot हमें नजर नहीं आ रहा, इसलिए ये वाला तो खत्म होगा। जहां तक सवाल है इसका और इसका, तो because this is at a greater distance from the pivot, तो इस वाले को ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो ये वाला सबसे ज्यादा जल्दी काम कर जाएगा, ओके, क्योंकि इसका डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट सबसे ज्यादा है। यहाँ पे बहुत कम फोर्स लगानी पड़ेगी और काम हो जाएगा। यहाँ फोर्स ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, तो
यहाँ पे ये जो हैंडल है वो इससे जल्दी मूव कर जाएगा, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाएगा टू द लेफ्ट साइड, ठीक है। और ये क्लॉकवाइज क्योंकि पिवट से करीब है इसलिए ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी, तो ये जरा बाद में मूव करेगा, इसलिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस, ठीक है जी। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर टॉपिक 1.9 which was turning effect of forces. This topic is a bit tricky. It requires certain explanations. The questions in the end were relatively easy. The distances were given, the center of masses were mentioned, so we did them quickly. But the questions in the beginning were a bit no, I can't say difficult, but I would say that they needed explanation. So we did what we could. So if you found anything helpful in this video, you understood a concept that you previously couldn't, so kindly remember me in your prayers. And inshallah, we will meet you with another topic in another video. Our next topic would be topic 1.10, which is center of mass. This is a relatively simple and a smaller topic. We shall inshallah do it in just one video or so. So let's meet in another video inshallah. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. Kindly like and subscribe the channel. Thank you.